یہ ہے وقت میڈیا۔ ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے تاریخی شہر مراد آباد کے محلہ اڑپورہ لاجپت نگر میں 6 اپریل 2017 کو جلسہ دستار بندی اور محفل قرأت کا پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام کو منعقد کیا مدرسہ قوت الدین محلہ اڑپورہ لاجپت نگر مراد آباد نے۔ اس مدرسے کے محتمم ہیں نیک دل خوبصورت انسان حضرت مولانا قاری شکیل الرحمان صاحب۔ اس پروگرام میں اپنی نظامت کے جوہر دکھائے ہندوستان کے مشہور اور معروف ناظم جلسہ جناب ڈاکٹر ساجد العظمی صاحب نے۔ تم دینا نہیں چاہتے ہو تو حضرات قرآن کی محفل ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آیت مجھ پہ ایسی نازل ہوئی جو میرے علاوہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی گئی، اور وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، بہتا ہوا دریا ٹھہر گیا، چلتی ہوئی ہوا رک گئی، جانوروں نے کان لگا لیے، شیطانوں پہ آسمان سے آگ کے شعلے برسے۔ پروردگار عالم نے فرمایا قسم ہے میری عزت و جلال کی کہ جس چیز پہ یہ آیت پڑھ دی جائے گی اس میں برکت ہوگی۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، ہر اپنا اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کیجئے اور پھر اس میں برکت کا مظاہرہ کیجئے۔ تو ہم تو ہر کام شروع کرتے ہیں اور بسم اللہ ہی بھول جاتے ہیں۔ برکت کہاں سے ہوگی؟ اس کے بعد جو ہے آپ جاتے ہیں حضرت دعا کر دیجئے کاروبار میں برکت ہو جائے، اس سے پوچھئے کہ بسم اللہ پڑھا بھی تھا یا نہیں پڑھا تھا۔ حضرات، قرآن کی محفل جس ذات گرامی پہ قرآن مقدس نازل ہوا، اس کی تعریف تو رب کائنات نے کی، اور قیامت تک آنے والے انسان اس کی تعریف میں ہمیشہ رطب اللسان رہیں گے۔ ایک شاعر اور ایک قاری اور ایک عالم، جس میں یہ تینوں صفات ہیں، اور جسے ہم نے دھنباد جھارکھنڈ سے امپورٹ کیا ہے یہاں، تاکہ آپ سنیں اور سمجھے۔ وہ ہمارا مہمان یہاں موجود ہے، ہم ان سے بار بار چونکہ سنیں گے تاکہ آپ کے دل کو قرآن کی جو لذت مل رہی ہے، اور یہ معلوم ہو جائے کہ جس ذات گرامی پہ قرآن نازل ہوا، اس ذات گرامی کے اوصاف جمیلہ کیا ہیں جس کی رب کائنات خود تعریف کر رہا ہے۔ آئیے میں گزارش کر رہا ہوں حضرت مولانا قاری جمشید جوہر صاحب دھنبادی، جو جھارکھنڈ سے یہاں تشریف لے آئے۔ صدر اجلاس، ڈائز پر موجود قرائے اعظام، علماء کرام، محترم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے اس دیار محبت پر دوسری بار حاضر ہو رہا ہوں۔ پچھلے سال اندرا چوک میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ سب کی محبتوں کی بنیاد پر میں پھر حاضر ہوں، اور امید ہے انشاءاللہ ویسی ہی نوازشات کے ساتھ امسال پھر وطن مألوف کو لوٹوں گا، اور بہت ساری دعائیں آپ سب سے لینا ہے۔ میں محترم مولانا قاری شکیل الرحمان تابش صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب سے رابطہ ہوا فون پر لگے رہے۔ ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب العظمی صاحب جو میرے مشفق کرم فرما ہیں، بڑی محبت فرماتے ہیں،
लेकिन कभी कभी ये मोहब्बत बड़ी गिरा गुजरती है। डॉक्टर साहब बड़े चालाक आदमी हैं, वो जानते हैं कि मुझे कब इस्तेमाल करना है। बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत, ये इनकी मजबूरी है, क्या कीजिए। हज़रत 12 बजे के बाद मैं हाजिर हुआ हूँ, जबकि अलसबा फिर हमारी गाड़ी है, वापस लौटना है। पूरे 24 घंटे का सफ़र करके आया हूँ और फिर 24 घंटे का सफ़र करना है। बहरहाल आप हजरात के दरमियान हाजिर हूँ। मैं सबसे पहले अभी दस्तार बंदी हुई है हुफ़ाज़ किराम के सरों पर, मैं चाहता हूँ कि वो उस मंज़र को आप जहनों में रखें और यहीं से मैं एक मतला 2 शेर हाजिर करता हूँ। उसके बाद इंशाअल्लाह नात शरीफ और फिर जैसा आप हजरात का हुक्म होगा उसी के मुताबिक मैं चाहूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी गुजारिशात पेश कर सकूँ। मैं हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं डॉक्टर साहब। जज्बात में आकर चाहूँगा कि थोड़ी सी ज़िंदगी आप पैदा करें और एक एक शेर पर आप आज़ाद हमारी, अगर किसी काबिल आपको लगे कोई शेर तो रद्द अमल ज़ाहिर होना चाहिए। आप सबकी तायीद में चाहूँगा, कम से कम अपनी ज़बान से सुभान अल्लाह कह देंगे तो इससे ये होगा कि ज़िक्र इलाही का सवाब भी आपको मिल जाएगा, मुझ नाचीज़ की हौसला अफजाई भी हो जाएगी इंशाअल्लाह। हाजिर करता हूँ। जज्बात में आकर जज्बात में आकर ऐ लोगों जज्बात में आकर ऐ लोगों कुदरत से लड़ाई मत करना, कुदरत से लड़ाई मत करना। जज्बात में आकर जज्बात में आकर ऐ लोगों कुदरत से लड़ाई मत करना, कुदरत से लड़ाई मत करना। जज्बात में आकर ऐ लोगों को जज्बात में आकर ऐ लोगों कुदरत से लड़ाई मत करना, कुदरत से लड़ाई मत करना। ये हाफिज कुरआन हाफिज कुरआन हाफिज कुरआन रब के वली हैं, इनकी बुराई मत करना, इनकी बुराई मत करना। ये हाफिज कुरआन रब के वली हैं, इनकी बुराई मत करना, इनकी बुराई मत करना। ये हाफिज कुरआन रब के वली हैं, इनकी बुराई मत करना, इनकी बुराई मत करना। तुम शौक से सारे फन सीखो, तुम शौक से सारे फन सीखो, पर इतनी गुजारिश है तुमसे, इतनी गुजारिश है तुमसे। तुम शौक से सारे फन सीखो, पर इतनी गुजारिश है तुमसे, इतनी गुजारिश है तुमसे। तुम शौक से सारे फन सीखो, पर इतनी गुजारिश
गुजारिश है तुमसे, इतनी गुजारिश है तुमसे, इस्लाम पे जिसे आँचा है तुम ऐसी पढ़ाई मत करना, ऐसी पढ़ाई मत करना, इस्लाम पे जिसे आँचा है तुम ऐसी पढ़ाई मत करना, ऐसी पढ़ाई मत करना, ऐसी पढ़ाई मत। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम शौक से सारे फन सीखो, पर इतनी गुजारिश है तुमसे, इतनी गुजारिश है तुमसे। तुम शौक से सारे फन सीखो, पर इतनी गुजारिश है तुमसे, इतनी गुजारिश है तुमसे, इस्लाम पे जिसे आँचा है तुम ऐसी पढ़ाई मत करना, ऐसी पढ़ाई मत करना, इस्लाम पे जिसे आँचा है तुम ऐसी पढ़ाई मत करना, ऐसी पढ़ाई मत करना। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए एक मतला चंद शेर आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ, बादहू नाते पाक इंशाअल्लाह हाजिर करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं। अभी मुफस्सल कलाम पढ़ा गया मदारिस के उन्वान से। आइए मैं मतला हाजिर करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं। आज ऊंची ऊंची जो हस्तियां चमकती हैं, आज ऊंची ऊंची जो हस्तियां चमकती हैं, हस्तियां चमकती हैं, आज ऊंची ऊंची जो हस्तियां चमकती हैं, आज ऊंची ऊंची जो हस्तियां चमकती हैं, आज ऊंची ऊंची जो हस्तियां चमकती हैं, फैज है मदारिस का, अरे टोपियां चमकती हैं, फैज है मदारिस का, टोपियां चमकती हैं, फैज है मदारिस का, टोपियां चमकती हैं। और दोस्तों डाइस पर एक एक शख्स, एक एक आलिम, एक एक हाफिज, एक एक कारी मेरी मुराद है। इन सब को आप देखें और इनकी अजमत को समझें। इन सब के हवाले से एक शेर पेश करता हूं, मुलाहिज़ा फरमाएं। इनको क्या समझते हो, ये नबी के वारिस हैं, इनको क्या समझते हो, ये नबी के वारिस हैं, इनको क्या समझते हो, ये नबी के वारिस हैं, इनको क्या समझते हो, ये नबी के वारिस हैं, इनके दम कदम से ही बस्तियां चमकती हैं, इनके दम कदम से ही बस्तियां चमकती हैं, फैज है मदारिस का, टोपियां चमकती हैं, टोपियां चमकती हैं, और दीन के यकीन है, इनका ही करम है जो, दीन के यकीन है, इनका ही करम है जो, दीन
दाढ़ियां चमकती हैं मोमिनों के चेहरों पर, दाढ़ियां चमकती हैं, फैज है मदारिस का, टोपियां चमकती हैं, टोपियां चमकती हैं, और जिसका है करम मुझ पर, जिसे मैं बना जौहर, मक्ता समाज फरमाए, जिसका है करम मुझ पर, जिसे मैं बना जौहर, जिसका है करम मुझ पर, जिसे मैं बना जौहर, उस सराप जलवे की जूतियां चमकती हैं, फैज है मदारिस का, टोपियां चमकती हैं, टोपियां चमकती हैं, टोपियां चमकती हैं। आइए हजरात एक बार बारगाह रिसालत में आप ताजदार दो आलम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया दुरूद पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाते रसूल का मतला हाजिर कर। अगर आप दीनी जलसे हमारी टीम से कवरेज कराना चाहते हैं या फिर मुशायरे कवरेज कराना चाहते हैं या कोई और प्रोग्राम, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। ये पूरा जो महफिल किरात का प्रोग्राम है आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल का एड्रेस है www.youtube.com/user/Islami Express। इसके अलावा आप मुशायरे देखना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.mushairalive.com। अब अपने दोस्त शफीक खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।